students of class 10 going to participate in the examination of 22. पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था एक्सरसाइज 4.3, उसमें कुछ क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम थे, छूट गए थे, उसको भी हम लोग देखेंगे और नेचर ऑफ रूट्स के बारे में भी पढ़ेंगे और साथ साथ कुछ क्वेश्चंस भी उस पर देखेंगे और यहीं पर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिनिश हो जाएगा। तो प्रारंभ करते हैं। लेट अस स्टार्ट नाउ। क्वेश्चन नंबर 9 अप टू 8 वी हैव सॉल्व एंड नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 9. Question is telling us two water taps together can fill a tank in 9 and 3/8 hours. This means the both tap combinedly fill the tank in 9 and 3/8 hours. 9 and 3/8 hours. 9 and 3/8 hours means 75 by 8 hours. The relation between the taps is given. The tap of the larger diameter takes 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately. यानी कि पहला दो टैप है, एक टैप छोटा डायमीटर का, बड़ा टैप बड़ा डायमीटर का है। बड़े वाला डायमीटर जो है वो छोटे वाले डायमीटर के पाइप से 10 घंटा कम समय लेता है टैंक को फिल करने में। तो हम सपोज कर लेते हैं कि छोटे वाले टैंक कितने देर में भरते हैं। तो लेट द पाइप of a smaller diameter takes X hours to fill the tank. Therefore, the bigger pipe will take X minus 10 hours to fill the same. Tank. Now we shall find out the work of the both pipe in 1 hour. Since the smaller diameter pipe takes X hours to fill totally, therefore in 1 hour the smaller diameter pipe can take 1 by X hours, and 1 by X part of the tank, and the next and bigger pipe will fill the tank in 1 hour, X minus 10 part of the same tank. Therefore, the both pipe can fill the tank in 1 hour, 1 by X part and 1 by X minus 10 part, and that will be because the total time is 75 by 8. Therefore, in 1 hour, the part of the tank filled is just 8 by 75. 8 by 75. Now we shall solve this. X into X minus 10, X minus 10 plus X is equal to 8 by 75. Now this will equal to twice X. We can take the 2 as a common, X minus 5
whole divided by x square minus 10x is equal to 8 by 75. We can cancel this 2 and 8 by 2. So 2 4 ja 8 and 2 1 ja 2. Now it will equal to x minus 5 whole divided by x square minus 10x is equal to 4 by 75. Now taking the cross product, we will get 4 into x square minus 10x is equal to 75 into x minus 5. Now this will equal, this implies that 4x square minus 40x is equal to 75x minus 75 into 5. Taking the right side thing to the left also. So this is 4x square minus 40x minus 75x plus 75 into 5 is equal to 0. This implies 4x square minus 5 is here, 7 4 11, 115x plus 5 5 ja 25, 2 7 5 ja 35, 2 37 is equal to 0. Now we shall take the factor so that the difference, because here is a plus, here is a plus, that this will be break in the two negative parts because your sum will be positive. Here is a 75 into 5 and here is the 4 also. So here is 4. The factor is 3 into 5 into 5 into 5 into 2 into 2. Here we are going to compare A as the 4, B equal to minus 115 and C equal to 375. So the discriminant B is equal to D is equal to B square minus 4AC. Now we obtain this. B square means 115, because the square of minus is positive. 115 square minus 4 into A is 4 and C is 375. So 115 square $13,225 and the 4 into 4 into 375, that is 375 into 16, 6 5 ja
that is equal to, that is D is equal to 13,225 minus 6 5 जा 33, 7 6 जा 42, 3 45, 4 6 3 जा 18, 4 22, 1. This is 0, 5 5 10, 7 2 9 1 10, 10 3 2 5 1 6, 6,000. And therefore the difference is 522, 522 and 7 6 this. And this is the square of perhaps 85. 85 square is equal to 5 5 ja 25, 2 8 5 ja 40, 2 80 and 8 z ja 64. 5 2 2 7. That is equal to 85 square. So D is equal to this. D square is this, and now D is equal to plus minus 85. So x is equal to minus b. B is here minus. So 115 plus minus 85 whole divided by a is equal to 2, because here will be 2a, that is 4 to the 8. Now this will equal to 115 plus 85 divided by 8, or 115 minus 85 divided by 8. So this is equal to 5 5 ja 10, 5 5 10, 1 8 1 9 1 10, 1 1 2 by 8, or 5 minus 5 0, 8 11 minus 8, that is 3 by 8. So here is 25 8 ja 200, and this is 2 4 ja and 215. Therefore the smaller x is equal to 25, and that was supposed x hours, so 25 hours, and therefore the smaller pipe will fill in the 25 hours, and a bigger will fill the tank in 25 minus 10, that is 15 hours. This will be cancelled, that is invalid, 15 by 4, because suppose a smaller is taking 15 by 4 hours to fill the tank, then the bigger will be 15 by 4 minus 10, that will take the less time, negative time, that is impossible. So 15 by 4 is not acceptable. So x equal to 15 by 4 hour is invalid. I think there will not be any question.
for me. First, we have obtained the quadratic equation. Compare with the ax square plus bx plus c. A equal to 4, b equal to minus 115, c equal to 375. Now d square equal to b square minus 4ac, and this much square minus this, and after the solution d is equal to plus minus 85. Now x is equal to this by 8, and now this by 8, one times plus and one times minus, and this thing is impossible because a smaller one can take the 15 by 4 hours, but the bigger pipe take the less than 10 hours less. So 15 by 4 minus 10 is the negative number, so this 15 by 4 is invalid. It should be mentioned in the solution of your answer. Okay. The next question is, an express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 km between Mysore and Bangalore without taking into consideration the time they stop at intermediate station. यानी मान लिया जाए कि बीच वाले स्टेशनों पर जो रुका बेंगलोर से मैसूर के बीच में, उसको इग्नोर किया गया है या वो सब मेंशन करके ही लिखा गया है. इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन is 11 km per hour more than that of the passenger train, find the average speed of two trains, यानी both train express and passenger. हम लोग अब इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें पैसेंजर ट्रेन का जो स्पीड है एक्सप्रेस ट्रेन का उससे 11 किलोमीटर अधिक है, और बेंगलोर से मैसूर का डिस्टेंस 132 किलोमीटर है. तो हम लोग ऐसा करते हैं, पहले बेंगलुरु टू मैसूर का छोटा सा एक डायग्राम बना लेते हैं. मान लेते हैं कि ये बेंगलुरु है और ये मैसूर है, और द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशंस इज 132 किलोमीटर. अब द फर्स्ट वन ट्रेन, सपोज द पैसेंजर ट्रेन, स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन इज x किलोमीटर पर आवर, and therefore the speed of the express train will be x plus 11 kilometer per hour. So we suppose here, let a speed of passenger train equal to x km per hour and a speed of express train is equal to x plus 11 kilometer per hour. Express train takes 1 hour less time, and surely express train will take the less time than the passenger train, because the speed of the passenger train is less than the express train. So we know that the time is equal to distance travelled by a speed of the train. So because passenger train will take more time, so we first write here the 102, distance is 132 kilometer by speed is x, so this is 132 by x hours, and minus 132 by x plus 11 is equal to, according to question, only 1 hour. Now this implies 132 is taken as the common, therefore taking LCM, x plus 11 minus x whole divided by x into x plus 11 is equal to 1. This implies this x cancel this x, so the numerator is 132 into 11 whole by x square plus 11x is equal to 1. Now taking cross product,
then it will be x square plus 11x is equal to 132 into 11. We can change the side of the 132 into 11 to the left side. So this is x square plus 11x minus 132 into 11 is equal to 0. If we factorize this, then we will get x square plus 44x minus 33x minus 132 into 11 equal to 0. Now this will be, after factorization we can write x plus 44 into x minus 33 is equal to 0. Therefore x is equal to 33 and minus 44. Surely the speed of train is not negative, so this is invalid. You should mention in your solution why 44 is invalid, because speed of the train will not never negative, so this is invalid. Now this is the speed of the small passenger train, so speed of passenger train equal to 33 kilometer per hour, and the speed of express train 33 plus 11 is equal to 44 kilometer per hour. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चूंकि हमारा रिलेशन दिया हुआ था टाइम में रिलेशन होने के कारण हमको टाइम ही निकालना था, इसीलिए हमने डिस्टेंस बाय स्पीड का सहारा लिया, इस फॉर्मूले का सिलेक्शन किया। और तब डिस्टेंस 132 दोनों ट्रेन के लिए वही है, चूँकि बेंगलोर से मैसूर ही जाना है तो डिस्टेंस 132 किलोमीटर ही है, तो पैसेंजर ट्रेन अधिक समय लेगा, एक्सप्रेस ट्रेन कम समय लेगा, और दोनों के समय का अंतर 1 ही घंटा है, इसीलिए दोनों के टाइम का अंतर 1 घंटा हो गया, और उसके बाद सॉल्व कर दिए, आंसर आ गया। अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन बचा है सिर्फ, इसको भी देख लेते हैं, उसके बाद ये था क्वेश्चन नंबर 10। ये था क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। Question is telling us sum of the areas of 2 squares is 468 meter square. If the difference of their perimeter is 24, find the sides of the 2 squares. 2 स्क्वायर के एरिया का सम 468 मीटर स्क्वायर है और दोनों के पेरीमीटर का डिफरेंस 24 मीटर है। तो हम मान लेते हैं कि पेरीमीटर ऑफ ए स्मॉलर स्क्वायर इज इक्वल टू x मीटर।
Therefore, perimeter of bigger square will equal to x plus 24 meter. Now, area of the square is the side square and these are the perimeters. So, according to question we can write x by 4 meter square plus x plus 24 whole divided by 4 square is equal to 468 meter square. Now, this will after solution, this is x square by 16 plus x by 4 x square by 16 plus 2 into x by 4 into 4 6 ja 24. So, there is 6 plus 36 is equal to 468. This is a square plus b 2ab plus b square. X by 4 is x by 4 and therefore the x by 4 and 22 by 4 is 6. So, 2a is x by 4, b is 6. Now, this is twice x square by 16 plus here is 2 2 ja 4 2 3 ja 6. So, this is plus thrice x plus 36 minus 468 is equal to 0. Now, 2 1 ja 2 and 2 8 ja 16. So, this will equal to x square by 8 plus 3x plus minus 468 minus 36, 8 minus 6 2, 4 6 minus 3 3, 4. This is the minus 432 is equal to 0. Since here is the denominator x square, so we should multiply the whole expression by 8. We will get x square plus 8 3 ja 24x minus 432 into 8 equal to 0. Now, the factorization of this is equal to x square plus 72x minus 48x minus 432 into 8 equal to 0. So, if we take here the factorization taking common, so this will be x square taken x I the common x plus 72 minus 48 is taken as the common x plus 72 is equal to 0. This implies x minus 48 and x plus 72 is equal to 0. This implies x equal to 48 meter and minus 72 meter. But the perimeter of any field will never be negative. So, minus 72 is invalid. Since perimeter of any field, any size of the field will never be negative. So, minus 72 as the perimeter is not acceptable. Now, if x is equal to 48 meter, that is the perimeter of a smaller square. Therefore, the side of the smaller square, equal to 48 by 4 meter equal to 12 meter.
and the perimeter of the bigger square, that is x plus 24, is equal to 72 meter, and therefore the side of the bigger square is equal to 72 meter by 4 is equal to 18 meter. These two are the answer. ठीक है, मैं समझता हूँ आप लोगों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। और इतनी बात आप लोग जान लीजिए कि परीक्षा में जब भी कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये एकेडमिक्स एग्ज़ाम है। एकेडमिक्स एग्ज़ाम में ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है जो सामान्य रूप से आपके सिलेबस से बाहर हो। कंपटीशन में हो सकता है, लेकिन एकेडमिक्स में ऐसा नहीं होता है। अभी तक तो देखने को नहीं मिला है। उसमें भी सीबीएसई में तो बिल्कुल ही नहीं। सीबीएसई तो इस तरह से चाहती है कि 60% क्वेश्चन जनरल स्टूडेंट सॉल्व कर ले, यानी 60% मार्क्स जनरल स्टूडेंट को आ जाए, ऐसा सीबीएसई चाहती है। अब जो पढ़ेगा ही नहीं तो उसका कोई जवाब ही नहीं है। तो अब हम लोग देखेंगे कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है। आज हम लोग नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सिलसिले में बात करते हैं। तो नेचर ऑफ रूट्स, इसके लिए हम लोग सामान्य रूप से जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो थ्योरेटिकल पोर्शन है, यानी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप पहले से जानते हैं ये लिखा जाता है a नॉट इक्वल टू 0। एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं कि a नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिखते हैं। तो a अगर 0 लिख देंगे तो 0 इंटू x², ये टर्म ख़त्म हो जाएगा, वैनिश कर जाएगा, तो सिर्फ ये लीनियर बचेगा। तब तो क्वाड्रेटिक रहा ही नहीं। तो जब नहीं रहा तो उस केस में हम लोग लीनियर पढ़ना तो है नहीं, यहाँ तो हमको क्वाड्रेटिक पढ़ना है। इसीलिए हम लोग ए को कन्फर्मली 0 नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव, नेगेटिव, रैशनल, इरैशनल कोई भी नंबर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग जो पहले डिराइव कर चुके हैं कि x इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस a। तो यहाँ पर जो एक चीज़ देखे, b तो रैशनल नंबर है, 2a भी रैशनल नंबर है, या इरैशनल भी हो तो ये इरैशनल है, लेकिन यह टर्म हर हमेशा रैशनल हो, ये रियल नंबर हो, यह ज़रूरी नहीं है। यानी रूट के अंदर b² माइनस 4ac हमेशा रियल नंबर हो, यह ज़रूरी नहीं है। इसीलिए यहाँ हम लोग क्या करते हैं, b² माइनस 4ac की चर्चा करते हैं। b² माइनस 4ac। अब ये एक्सप्रेशन है, तो b² का वैल्यू में से 4ac को माइनस करना है। अगर b² का वैल्यू ज़्यादा है, 4ac का वैल्यू कम है, तो पॉजिटिव नंबर होगा। लेकिन यदि b² का मान वैल्यू कम है और 4ac का वैल्यू ज़्यादा हो गया, तो b² माइनस 4ac नेगेटिव हो गया। और उस केस में यहाँ जो लिखा हुआ है b² माइनस 4ac रूट के अंदर, तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए इसका वैल्यू हम मान लेते हैं a का, b का, c का जो भी वैल्यू हो, सॉल्व करने पर आ जाता है रूट के अंदर -2। इसके अनुसार b² का माइनस 4ac का वैल्यू 2 आया और रूट लगा देंगे इसके कारण, तो ये -2 हो गया। तो -2 हो गया तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करें x रियल हो और उसका स्क्वायर करें और आंसर -2 हो जाए, ऐसा एक भी नंबर नहीं है। और रियल नंबर का डेफिनेशन भी होता है कि ए नंबर हुज स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव। जब नंबर ऑलवेज पॉजिटिव होगा तभी वह रियल कहलाएगा। स्क्वायर नंबर पॉजिटिव होगा तभी रियल कहलाएगा।
अगर स्क्वायर करने पर वह नेगेटिव हो जाए तब वह रियल नहीं कहलाता है। और यहाँ तो रूट के अंदर -2 है, और कोई ऐसा वैल्यू आए जिसका स्क्वायर करे और -2 हो जाए रियल में, तभी ये रियल कहलाएगा। ऐसा तो हो नहीं सकता है। तो जब नहीं हो सकता है तो उस केस में हम लोग लिखेंगे कि रूट डिफरेंट हो गया, माने ये रियल नहीं हो पाया। तो क्लास 10 में हम लोगों को सिर्फ रियल नंबर ही पढ़ना है, दूसरा चीज़ पढ़ना ही नहीं है। और नंबर ऐसे भी दूसरा होता नहीं है, एक रियल और एक इमेजिनरी होता है, और दोनों को कम मिला देंगे तो कॉम्प्लेक्स होता है। तो रियल पढ़ना है, इमेजिनरी पढ़ना नहीं है। तो इसकी चर्चा हम लोग करेंगे यहाँ पर कि जब b² - 4ac ग्रेटर देन 0 तो क्या हो जाएगा कि रूट्स रियल एंड अनइक्वल, या डिस्टिंक्ट भी लिख सकते हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब भी होता है अलग अलग। पहला कंडीशन हो गया जब b² - 4ac ग्रेटर देन 0। दूसरा कंडीशन है जब b² - 4ac इक्वल टू 0। तो इक्वल टू 0 हो गया, तब यहाँ इस b² - 4ac का वैल्यू 0 यहाँ बैठाइए, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ -b/2a और प्लस -0, यानी -b/2a प्लस 0 और एंड -b/2a। दोनों ही स्थिति में आंसर हमारा सेम है -b/2a, चूँकि 0 ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसका मतलब ये दोनों वैल्यू समान है। तो b² - 4ac 0 हो तो रूट्स रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। और तीसरा कंडीशन वही है जो जिसको पहले हम लोग थोड़ा सा डिस्कस किए, b² - 4ac लेस देन 0 तो नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। अब इसमें b यानी कि ये -b और 2a के बारे में एक बार भी हम लोग चर्चा नहीं किए। रूट्स का नेचर निकालने के लिए सिर्फ b² - 4ac की चर्चा की है, इसके तीनों ही कंडीशन में, और किसी की चर्चा नहीं किए। तो इसकी जो चर्चा किए इसी के आधार पर ये होल का नेचर निकल गया। निकाले सिर्फ b² - 4ac का, लेकिन नेचर निकल गया पूरे होल सिस्टम का। तो इस पर डिपेंड किया, ये जो कहेगा वही करना होगा, वही कहना होगा हमको भी। तो इसके कारण इसको हम लोग हिंदी में तो विवेचक कहते हैं। क्यों विवेचक कहते हैं? ये विवेचना करता है। इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं, यानी डिस्क्रिमिनेट करता है कि दो डिफरेंट रूट है या नहीं है, क्या है, कैसा है। ये डिस्क्रिमिनेशन इसका काम है करना। तो इसीलिए इसको जो डिस्क्रिमिनेट करे वह डिस्क्रिमिनेंट हुआ। तो इसीलिए हम लोग डिस्क्रिमिनेंट का फर्स्ट लेटर डी है, इसीलिए हम लोग डी को b² - 4ac डिनोट करते हैं। d इक्वल टू b² - 4ac। तो अगर हम इस तरह से यहाँ विचार करें तो ये हो जाएगा -b ± √/d होल डिवाइडेड बाय ट्वाइस a। ये हो गया हमारा x का वैल्यू। चूँकि d का वैल्यू b² - 4ac है और d का वैल्यू हम यहाँ d ही रखे, ये नहीं रखे तो हम सॉल्व करके ले आएंगे और यहाँ रखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो इसके आधार पर हम एक्सरसाइज 4.4 का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करें। तो हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, ताकि उस इक्वेशन को 2 इक्वल रूट हो जाए।
क्वेश्चन नंबर सेकेंड ऑफ 2, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट इक्वल है तो k का क्या वैल्यू होना चाहिए। इक्वेशन है kx इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे क्वाड्रेटिक बनाने के लिए। के एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस के एक्स प्लस 6 इक्वल टू 0। अब हम लोग मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो पढ़े हैं यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 उससे कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू के, b इक्वल टू माइनस 2k एंड c इक्वल टू 6। तो b यानी d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 4 इंटू b का वैल्यू माइनस 2k है तो माइनस 2k स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 6 दैट इज इक्वल टू 4k स्क्वायर माइनस 24k। अब क्वेश्चन कह रहा है कि रूट्स इक्वल है, रूट्स इक्वल है तो डिस्क्रिमिनेंट हमेशा 0 होगा तभी रूट्स इक्वल होता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम यहाँ आते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन d इक्वल टू 0 यानी 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज, अब हम इसमें कॉमन ले सकते हैं, 4k कॉमन ले लिए तो k माइनस 6 इक्वल टू 0। देयरफॉर k इक्वल टू 0 एंड 6। इसको सॉल्व करेंगे तो k का वैल्यू 0 भी आएगा और 6 भी आएगा। लेकिन k का वैल्यू अगर 0 लेते हैं तो 0 इंटू एक्स स्क्वायर ये टर्म वैनिश कर जाता है। वैनिश होने के कारण तब ये लीनियर रहेगा, क्वाड्रेटिक तो रहेगा नहीं, इसीलिए k 0 नहीं हो सकता है। पहले भी जानते हैं हम लोग कि ए एक्स स्क्वायर में a का वैल्यू 0 नहीं होता है, तो यहाँ भी तो के एक्स स्क्वायर है तो k का वैल्यू 0 नहीं हो सकता है। तो यहाँ लिखेंगे सिंस k इक्वल टू 0 इज इनवैलिड, सो k इक्वल टू 6 आंसर। सिर्फ k का वैल्यू 6 होगा तभी दिए हुए क्वेश्चन इसका रूट इक्वल हो सकता है। ठीक है, हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जो क्या कहता है, देखते हैं। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। यानी एक आम का बगीचा है जिसका लेंथ ब्रेथ से डबल है और एरिया 800 मीटर स्क्वायर है। क्या यह संभव है ऐसा होना? अगर है तब लेंथ और ब्रेथ को निकालिए। तो निकालते हैं, देखते हैं पहले संभव है कि नहीं है ये देखेंगे, और जब संभव होगा तो निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 3। एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। कह रहा है रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है, माने आम का बगीचा रेक्टेंगुलर है। अगर इसका ब्रेथ
x है तो लेंथ ट्वाइस x है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एरिया ऑफ दिस मैंगो ग्रोव इज 800 मीटर स्क्वायर, सो दिस इज ट्वाइस x इंटू x इज इक्वल टू 800। ठीक है, that is 2x square is equal to 800. This implies x square is equal to 400 equal to 20 square, प्लस माइनस लिख सकते हैं, प्लस माइनस 20 स्क्वायर। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 20 एंड माइनस 20 मीटर लिखिए, 20 मीटर एंड माइनस 20 मीटर। तो किसी भी बगीचे का लेंथ नेगेटिव नहीं होगा, और नहीं होगा तो इनवैलिड लिखिए यहाँ, दिस इज इनवैलिड। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 20 मीटर ओनली। तो लेंथ निकल गया 20 मीटर, ये लेंथ निकल गया 20 मीटर, तो ब्रेथ हो गया 20 मीटर, तो लेंथ हो गया 2 इंटू 20 इक्वल टू 40 मीटर। यही आंसर हुआ, L इक्वल टू 40 मीटर, B इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, अब हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वर्ड प्रॉब्लम में। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल? क्या संभव है? इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। तो कंडीशन क्या है देखते हैं। द सम ऑफ एजेज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। 4 years ago the product of their ages in years was 48. 4 years ago the sum of the ages of two friends is 20 years. तो एक फ्रेंड का मान लेते हैं। लेट क्वेश्चन नंबर 4 है ये। लेट द एजेज ऑफ फ्रेंड्स equal to x years and 20 minus x years। ऐसा क्यों? इसीलिए कि दोनों के एज का सम 20 ही है। सम ऑफ द एजेज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। तो इसको ऐड करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा, 20 बच जाएगा। अब कहता है 4 साल पहले, 4 years एगो, तो 4 साल पहले इस फ्रेंड का एज कितना था? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले फ्रेंड का उम्र आज से 4 साल कम था, तो x माइनस 4 ईयर्स। तो इसका भी 4 साल पहले 20 माइनस एक्स माइनस 4, तो ये हो जाएगा 16 माइनस एक्स। और दोनों का प्रोडक्ट कहता है द प्रोडक्ट ऑफ दीज एजेज इन ईयर्स वाज 48। तो ये दोनों दोस्त के 4 साल पहले के एज का प्रोडक्ट 48 ईयर्स है। तो अब ज़रा इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो ये हो गया 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48। 16x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 प्लस 4x। ठीक है,
तो ये यहाँ लिखेंगे हम लोग माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस 16x प्लस 4x तो 20x प्लस 20x माइनस 64 minus 48 is equal to 0. This implies minus x square plus 20x minus 8 4 12 1 6 4 10 1 11. This is equal to 0. तो यहाँ हम लोग कंपेयर करें 20x यहाँ हम लोग कंपेयर करें a इक्वल टू -1 b इक्वल टू 20 and c इक्वल टू -112। तो d निकालना है, चूँकि क्वेश्चन कह रहा है कि इज पॉसिबल, क्या इस तरह का फ्रेंड का जो एज का रिलेशन है संभव है। तो संभव है का मतलब रियल रूट्स है या रियल रूट्स नहीं है। तो देखते उसके लिए सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट निकालना है यानी d निकालना है। तो यहाँ हम करेंगे बी स्क्वायर यानी 20 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए यानी -1 सी इंटू -112। दिस इज इक्वल टू 400 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस और 112 इंटू 4 that is 448 that is equal to -48 which is less than 0। यानी जो कंडीशन हमको क्वेश्चन में दिया है उसके अनुसार जो इक्वेशन बना हमारा उसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 हो गया। तो नो रियल रूट्स, तो रियल रूट्स हुआ ही नहीं, माने रियल कंडीशन नहीं हुआ तभी तो रियल रूट्स नहीं हुआ। अब रियल कंडीशन नहीं हुआ तो लिखेंगे सिंपली सिंस देयर इज नो रियल रूट्स सो द गिवन कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। लिखेंगे देयरफॉर देयर इज नो रियल रूट्स hence given condition given in question is not possible। This completes the solution of this question. Next question, and this is the last question. Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meter square? If so, find its length and breadth। अब पेरीमीटर दिया हुआ है 80, एरिया दिया हुआ है 400 मीटर स्क्वायर। तो पहले तो हम रेक्टेंगल बना लेते हैं। एक रेक्टेंगल बना लिए छोटा सा। अब इसमें लेंथ और ब्रेथ के बीच में रिलेशन नहीं मालूम है तो कुछ भी मान लेते हैं, इसलिए हम लोग L और B ही मान लेते हैं। पेरीमीटर क्या हो गया 2 इंटू एल प्लस बी इज इक्वल टू 80। तो L प्लस बी कितना हो गया 40। तो B इक्वल टू कितना हो गया 40 माइनस L। तो हम एक ही वेरिएबल रखेंगे तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो b के बदले में लिख देते हैं 40 माइनस एल। अब l हो गया 40 माइनस एल हो गया। ये रिलेशन हो गया हमारा लेंथ और ब्रेथ में। अब एरिया दिया हुआ है
तो इसको एरिया से लेकर के कंडीशन निकालेंगे, क्या हो सकता है देखते हैं। Again, according to question, area is given 400 meter square. According to question, L into 40 minus L is equal to 400. This implies 40L minus L square is equal to 400. This implies minus L square plus 40L minus 400 is equal to 0. चूँकि कंडीशन में कह रहा है कि इज पॉसिबल, यानी कि डिस्क्रिमिनांट पॉजिटिव है या नेगेटिव है या जीरो है, ये कंडीशन कह रहा है निकालने के लिए। तो हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ a इक्वल टू -1, b इक्वल टू 40 एंड c इक्वल टू -400। तो डिस्क्रिमिनेंट यानी d इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 40 का स्क्वायर 1600 माइनस 4 इंटू a का वैल्यू -1 और c का वैल्यू हो गया -400। तो दिस इज इक्वल टू 1600 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 400 इंटू 4 दैट इज 1600। दिस इज इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट चूंकि 0 हो गया तो रूट्स रियल एंड इक्वल हो गया। देयरफॉर रूट्स विल बी रियल एंड इक्वल। अब रियल एंड इक्वल हुआ तो इसका कंडीशन पॉसिबल है, और पॉसिबल है तो लेंथ और ब्रेथ क्या होगा, लेंथ और ब्रेथ क्या होगा यह निकालना है। लेंथ और ब्रेथ क्या होगा, यानी कि L का वैल्यू हो गया B 0 हो गया, तो x इक्वल टू या L इक्वल टू नॉट x बट L इक्वल टू माइनस B बाय 2a, दैट इज इक्वल टू -42 इंटू B का वैल्यू है 40, तो B इंटू 40 बाई 2 इंटू A का वैल्यू है -1, तो हियर इज -1। सो दिस इज इक्वल टू 40। यूनिट दिया हुआ है पहले से मीटर में, तो 40 हो गया। चूँकि लेंथ और रूट्स इक्वल है तो B भी वही होगा, B इक्वल टू 40 मीटर। अब इस क्वेश्चन में एक टेल ऐसे भी जोड़ सकता है कि व्हाट टाइप ऑफ रेक्टेंगल इज दिस। तो चूँकि लेंथ और ब्रेथ इक्वल है तो ये इस रेक्टेंगल को क्या कहेंगे, स्पेशल नेम स्क्वायर हो गया। तो ये जो दिया हुआ था रेक्टेंगुलर पार्क का डिजाइन वह स्क्वायर पार्क है, न कि रेक्टेंगुलर पार्क है। क्योंकि एवरी स्क्वायर इज ऑल्सो रेक्टेंगल, इसीलिए हमको रेक्टेंगल के बारे में पूछा, स्पेशल नेम पूछेगा तो लिख देंगे। चूँकि लेंथ और ब्रेथ इक्वल है इसीलिए हम लोग को ये कहना पड़ेगा कि रेक्टेंगुलर पार्क नहीं होकर के ये स्क्वायर पार्क है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा ये डिस्कस कर लेते हैं फिर से नेचर ऑफ रूट्स पर थोड़ा सा एडवांस करके, जिस सिलेबस के अनुसार एनसीईआरटी के अनुसार इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। अभी तक जो मैं पढ़ाया हूँ बताया हूँ उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन आगे क्लास में कुछ ज़्यादा पढ़ना नहीं है, इसीलिए
बाकी पढ़ेंगे कहाँ। तो हम इसकी चर्चा थोड़ा सा कर देते हैं ताकि आपको कोई आगे परेशानी न हो। कोई टीचर आपको किसी कोचिंग में जाने पर ये ना कहे कि तुम क्या पढ़ के आए हो। ठीक है। तो पहला कंडीशन ये था कि जब b² - 4ac ग्रेटर देन है 0 तो रियल है। अब इस रियल में दो बात होगी, रूट्स तो रियल हो गया, रूट्स रियल हो गया, लेकिन रियल नंबर तो दो तरह का होता है, रैशनल होता है एंड इर्रेशनल होता है। ये तो नहीं पता चला कि रूट्स रियल तो है, रैशनल है कि इर्रेशनल है, ये नहीं पता चला। ये भी पता चला सकते हैं। और अगर रैशनल है तो इसमें भी दो बात है, परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। परफेक्ट स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, परफेक्ट स्क्वायर और नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए √b² - 4ac हो, एक्सप्रेशन तो वही है हमारा ओरिजिनल फॉर्मूले का, x = दिस में। तो यहाँ तो ऐसा नंबर आना चाहिए, यहाँ पहले ही से मान चुके हैं कि b² - 4ac ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव नंबर हो गया। तो पॉजिटिव नंबर कुछ भी हो, किसी भी तरह से हो। तो मान लीजिए कि इंटीजर है 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से कुछ भी नंबर है इनफाइनाइट। तो इसमें इस नंबर को हम दो भाग में बांट सकते हैं। पहला भाग होगा जो परफेक्ट स्क्वायर होगा, जैसे 1 है, 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, और इसी तरह से परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो। अब यह इंटीजर भी हो सकता है और रैशनल भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ 1/4 ही है, 4/9 ही है, 9/16 ही है, 16/36 ही है, जो कैंसिल हो सकता है, लेकिन हम करेंगे नहीं, अभी 9 इतना ही रहने दीजिए। तो ये कैंसिल होकर के फिर यहाँ आ जाएगा। मान लीजिए ये 25/81 है, इस तरह से भी रह सकता है, इस तरह का नंबर यहाँ भी हो सकता है। तो ये तमाम परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो जब ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अगर इंटीजर लेते 1 4 9 6 25 16 25, तब ये ±1 ±2 ±3 ±4 एंड सो ऑन होता। अगर अभी जो वर्तमान कंडीशन में लिखा हुआ है इसमें होता तो इसका आंसर होता +-1/2 +-2/3 +-3/4 +-4/9 +-5/9। ये 4/6, 9 नहीं 4/6। तो इसको फिर से कैंसिल कर देंगे, 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, +-2/3 जो पहले है, ठीक है, +-5/9 एंड सो ऑन, इस तरह से हो सकता है। ऐसे केस में ये परफेक्ट स्क्वायर हो गया। तो आंसर जो x का लिखते थे कि x = -b ±, तो यहाँ इसी में से कोई नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पर तो रूट नहीं रहा अब, क्योंकि यहाँ रूट का वैल्यू लिखे हैं यहाँ। तो यहाँ पर हम लोग मान लीजिए 2/3 लिखे और होल/2 है, तो ये भी रैशनल, ये भी रैशनल, तो होल रियल रूट्स विल बी रैशनल, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग सिर्फ डिस्क्रिमिनेंट की चर्चा कर रहे हैं, b² - 4ac। यदि b² - 4ac का वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो तो रूट्स रैशनल होगा। यदि b² - 4ac का वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स हमेशा रैशनल होगा। अब अगर b² - 4ac का वैल्यू इस तरह से हो जाए जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो, तब क्या होगा?
जैसे मान लीजिए 2 हो जाए, 3 हो जाए, 5 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए एंड सो ऑन। इस तरह से जो एक भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, चाहे इंटीग्रल हो चाहे फ्रैक्शनल हो यानी रैशनल हो, हर स्थिति में इसका आंसर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 2 ही है तो लिखेंगे -b प्लस माइनस √/2/2a। तो ये तो रैशनल नंबर है, ये रैशनल नंबर है, लेकिन यहाँ इर्रैशनल है तो होल इर्रैशनल हो गया। तो अगर b² - 4ac पॉजिटिव है, लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो रूट्स रैशनल हो गए, और अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रूट्स इर्रैशनल हो गए। ठीक है, ये थोड़ा सा एडवांस कर दिए आप लोगों के लिए, ताकि आपको सीनियर क्लास में जाने में कोई परेशानी नहीं हो। लेकिन ये पढ़ना है नहीं क्लास 11 में। सीनियर क्लास का मतलब क्लास 11 में ये पढ़ना मन दिया ही नहीं है तो पढ़ाई कहाँ से होगी, और क्लास 10 में है नहीं, तो थोड़ा सा एडवांस हम कर दिए। ठीक है, और आज के क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फिनिश करते हैं। फिर कल हम लोग दूसरे चैप्टर, हम चाहेंगे कि सर्कल कर लिया जाए, फिर अगला एक्सरसाइज, फिर सर्कल के बाद तब हम लोग लेंगे प्रोग्रेशन। ठीक है, ओके, थैंक यू। सिर्फ आप मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, व्यू तो करिए ही, हो सकता है कभी कुछ लाभ मिल जाए। अधिक से अधिक व्यू कीजिए, कब किस समय क्या किस तरह की बात सामने आएगी। पुस्तक को बार बार पढ़ना चाहिए, टीचर को बार बार सुनना चाहिए, उससे कुछ न कुछ नई बात निकल कर सामने आती है। इसीलिए ओके, थैंक यू।